The first pathway for the formation or the production or the metabolism of the for the eicosanoids is the cyclooxygenase pathway, as we have discussed in the last module. And this cyclooxygenase pathway, as we have seen, produce the prostaglandins. The prostaglandins are fatty acids containing 20 carbon atoms, including an internal 5 carbon ring. अब ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं ये रैक्टोनिक एसिड से ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन इसके अंदर एक एडिशनल जो है इंटरनल 5 कार्बन रिंग प्रेजेंट है. So these are the, we will discuss in detail this cyclooxygenase pathway and the production of the prostaglandins. This is the structure of the prostaglandins, and we can see here that there is a 5 carbon ring in this particular structure of prostaglandin. This is a general structure of prostaglandins, and we will discuss that prostaglandins are subdivided into prostaglandin G, E, F2A, F2 alpha, and so on. So prostaglandins have a hydroxyl group at C15. So this is the carbon number 15, और इसके साथ this is ये एक hydroxyl group लगा हुआ है. And there is double bond between carbon atom number 13 and 14, and various substituents on the 5-membered ring at carbon number atom 9 and 11. अब ये 5-membered ring जो है इसके ऊपर इसके कार्बन एटम 9 और 11 पे डिफरेंट किस्म के जो हैं वो एक्स वाई को जिस तरह हमने डिनोट किया है, ये डिफरेंट किस्म के सब्स्टिट्यूएंट्स हैं. अब ये सब्स्टिट्यूएंट्स जिस तरह जैसे जैसे डिफरेंट होते जाएंगे उसी तरह प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हैं उनका नाम भी फर्क होता जाएगा, उसी तरह उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंशिएट करती जाएंगी. सो द डबल बॉन्ड्स आल्सो मे बी प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम नंबर 5 एंड 6. इसके अलावा 5 और 6 पे भी डबल बॉन्ड हो सकता है. And between carbon atom number 17 and 18 in case of series 2 and 3. अगर prostaglandin 2 और thromboxane 2 है या prostaglandin 3 है और thromboxane 3 है, तो these are called the 2 and 3 series. So these there can be a double bond between 17 and 18 and 5 and 6 carbon atoms depending upon the series of that particular prostaglandin. Nomenclature of prostaglandins or PGs involve the assignment of capital letter. इसको prostaglandin को हम PG लिखते हैं और इसके आगे जिस तरह का prostaglandin है उस तरह का capital letter लगाते हैं. This is the nomenclature. जैसे PGE is the prostaglandin E. A numeral subscript PGE1. अब PG ई जो है प्रोस्टाग्लैंडिन ई जो है वो 3, 4, 5, 6 बहुत सारी तरह के हैं, तो उनको हमने सब डिवाइड करने के लिए फर्दर सब डिवीजन के लिए उसके नीचे एक छोटा सा 1, 2, 3 और सब्सक्रिप्ट न्यूमरल सब्सक्रिप्ट लगाते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन E1, प्रोस्टाग्लैंडिन E2, प्रोस्टाग्लैंडिन E3 एंड सो ऑन. एंड फॉर द प्रोस्टाग्लैंडिन F family, a Greek letter is subscripted below the F, which is 2 alpha. So this is a different nomenclature slightly from the normal nomenclature. ये PGF जो है उसको हम 1, 2, 3 की बजाय PG2 alpha और 2 beta और so on हम करते हैं. But we will describe briefly the mainly present or the main important biomedically important prostaglandins. The capital letters refer to the ring substituents at the position X and Y. हमने कहा था 9 और 11 के ऊपर डिफरेंट किस्म के जो है ना सब्स्टिट्यूएंट्स लगे होंगे. जो सब्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट लगते हैं उसके अकॉर्डिंगली कैपिटल लेटर्स इनकी और उसी तरह की उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंशिएट होती हैं और उसी तरह के वो बन जाते हैं. दिस इज, अगर हम इसको देखें तो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन्स. हमने कहा था यहाँ 15 कार्बन पे OH ग्रुप है, 13 और 14 के दरमियान जो है वो एक डबल बॉन्ड है. इसी तरह 7 और 8 के दरमियान, 2 और 3 के दरमियान भी हो सकता है, 17 और 18 के दरमियान भी हो सकता है. लेकिन जो डिफाइन करेगा प्रॉपर्टीज वो X और Y सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप को करता है. अगर हम प्रोस्टाग्लैंडिन ए का स्ट्रक्चर देखें तो प्रोस्टाग्लैंडिन ए में दिस इज R7 हैविंग अ कार्बन. इसके R7 मींस के 7 कार्बन्स की चेन इस जगह पे 8 नंबर पे लगी होगी. इसी तरह R8 मींस के 8 कार्बन की चेन, 8 कार्बन चेन इज प्रेजेंट हियर.
and a double bond in this 5-member ring and a oxygen group. So this is different substituents कि यहाँ X की जगह हमने डबल बॉन्ड लगा के O लगा दिया और Y11 के ऊपर कुछ नहीं लगा और इसकी एक R7 और R8 चेन बन गई। तो ये इसको डेजिग्नेट हमने कर दिया प्रोस्टाग्लैंडिन A। प्रोस्टाग्लैंडिन I2 जो है दिस इज आल्सो नोन एज प्रोस्टासाइक्लिन। इसके अंदर वी कैन सी हियर दो डिफरेंट जो है ना वो रिंग्स हैं। One is the same as this ring is here as a 5-member ring, and there is another second ring which also contains an oxygen and an R4 which is having 4 carbon chain, straight chain, and an R8 which is having 8 carbon straight chain, and an additional hydroxyl group at 11 position which is denoted Y here. So these are the different types of prostaglandins. We can see their structure और XY substitute जो है उसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा और इसी वजह से उसके जो है वो डिफरेंट नेम्स हैं और डिफरेंट फंक्शंस हैं। We can see the other 3 options of the prostaglandins. अगर prostaglandin E में हम जाते हैं तो we can see here कि यहाँ इस 5-member ring पे कार्बन एटम नंबर 9 पे डबल बॉन्ड के साथ O लगा हुआ है, जबकि 11 के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड। सिमिलरली प्रोस्टाग्लैंडिन F अल्फा पे R7 और R8 यहाँ पे भी यही हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन E पे भी यही हैं, लेकिन यहाँ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स जो 9 और 11 पे हैं ये डिफरेंट है। 9 पे भी हाइड्रोक्सिल है और 10 पे भी हाइड्रोक्सिल है, जबकि प्रोस्टाग्लैंडिन E पे हमने देखा कि यहाँ 1 पे हाइड्रोक्सिल है और 9 पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगी हुई है। इसी तरह अनदर डिफरेंट बिटवीन प्रोस्टाग्लैंडिन G और प्रोस्टाग्लैंडिन H इज दैट ये दोनों 9 और 11 जो है ये आपस में मिलके रिंग बना के इसने एक और स्मॉल सा रिंग बना दिया और दोनों XY जिसको हमने यहाँ डिनोट किया था 9 और 11 इस 5-member रिंग के जो है इसके साथ 2 ऑक्सीजन लग गए जो आपस में अटैच हो गए। द रिमेनिंग स्ट्रक्चर ऑफ R7 और R8 which is composed of 7 and 8 carbon compound respectively remains the same. The numeral subscript that follows the capital letters that is prostaglandin E1 refers to the prostaglandin series 1, 2, 3। हम इसी तरह हम इसको 1, 2 prostaglandins को हमने कहा था E दे दिया, E के साथ हमने उसका न्यूमरल दे दिया नीचे 1, 2, 3 जो है उसी सीरीज से उसे डिफाइन करते हैं। डिटरमिन्ड बाय द नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड बॉन्ड। अब प्रोस्टाग्लैंडिन E1 में एक अनसैचुरेटेड बॉन्ड होगा, उसमें 2 में 2 होंगे, 3 में 3 बॉन्ड होंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ प्रेजेंट इन द लीनियर पोर्शन ऑफ द हाइड्रोकार्बन चेन। तो जितने उसके अंदर डबल बॉन्ड्स हैं उसी हिसाब से उनका जो है 1, 2, 3 उसकी सीरीज डिफाइन कर देते हैं। सो वी कैन ब्रीफली डिफाइन दीज सीरीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अगर दिस इज द इकोसा ट्रायोनिक एसिड, हमने कहा था कि जो उसका प्रिकर्सर होगा उसी से डिफाइन होगा कि कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन आ रहा है। तो इसके अंदर ये इकोसा ट्रायोनिक एसिड है, 3 डबल बॉन्ड है, 1, 1, 2, 2 और 3। सो इसका ये ओमेगा 6 है, इससे PgE1 बन रहा है जिसके अंदर सिर्फ एक डबल बॉन्ड है जो 13 और 15 के दरमियान है एंड दिस इज इन द ट्रांसफॉर्म। सो ये यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे ये सिस फॉर्म पे था जबकि यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्म पे हो गया और ये इसके प्रिकर्सर से इकोसोनिक एसिड से और इकोसोट्रायोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन E1 जो है वो बन गया अल्टीमेटली। सिमिलरली अगर हम एरेक्डोनिक एसिड से देखें तो एरेक्डोनिक एसिड पे 4 डबल बॉन्ड है, वी कैन सी हियर ये 5, 8, 11 एंड 14 पोजीशन पे है और दिस इज ओमेगा 6 फैटी एसिड। इससे प्रोस्टाग्लैंडिन E2 बना। E2 इसलिए है कि इस पे एक 5 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और एक 13 पोजीशन पे है। 5 पोजीशन वाला जो है वो सिस कन्फिगरेशन में है जबकि 13 और 14 के दरमियान जो है वो ट्रांस कन्फिगरेशन में है। सो दिस इज अगेन द फॉर्मेशन ऑफ एन अदर टाइप ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन फ्रॉम द एरेक्डोनिक एसिड। वी कैन सी दिस एन अदर फॉर्म ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन E3 एंड वी कैन सी हियर कि E3 हमने कहा था सीरीज 3 है, ये 3 सीरीज हम इसको डिफाइन करते हैं। ये इकोसा पेंटेनोइक एसिड से है जिसके अंदर 4 डबल बॉन्ड्स हैं, 1, 2, 3, 4 5 डबल बॉन्ड है, पेंटेनोइक है। इससे जो डिराइव होगा वो PgE3 है जिसके अंदर 3 डबल बॉन्ड है, 1 इज
between the carbon atom number 4 and 5. The other is between the 13 and 14, which is in the trans position, and the next one is 17 and 18, which is also in the cis position. So this is the structure of the prostaglandin E3. It does not include double bonds in the internal ring. कि जो इंटरनल रिंग हमने कहा था 5 मेंबर्ड है, इसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है. द डबल बॉन्ड्स between carbon atom 13 and 14 are trans, while the other are in the cis position. The Greek letter subscript found only in the F series refers to the position of hydroxyl group at carbon atom number 9. 9 पे अगर डबल बॉन्ड आ जाएगा तो उसको F के साथ 2 अल्फा बोल देते हैं. This hydroxyl group primarily exists in the alpha position, so that is the reason it lies below the plane of the ring, और इसको अल्फा 2 इस जो इसकी नॉमेनक्लेचर थोड़ी सी डिफरेंट हो गई, इसलिए कि इसको प्रोस्टाग्लैंडिन F हमने बोला, 2 बोला और अल्फा बोला, इसलिए कि इसके अंदर जो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया एट पोजीशन 9 ऑफ द कार्बन.